السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ چیف منسٹر کی دلی طلبی، تلنگانہ میچ کی آخری گیند پھینکنے کے لیے کرن کمار ریڈی کی جمعرات کو روانگی۔ تلنگانہ بل اس مہینے کے ختم تک آ جائے گا، صدر پی سی سی کو یقین۔ قدم قدم پر تیلگو عوام کی توہین کی جا رہی ہے، کانگریس قائدین کے خلاف چندرا بابو نائیڈو کا الزام۔ اٹھارہویں انٹرنیشنل چلڈرنز فلم فیسٹیول کا 14 نومبر کو آغاز، للت کلاتھورانم میں افتتاحی تقریب۔ اور فٹنس سرٹیفکیٹس اور پرمٹس کی عدم موجودگی پر راجندر نگر میں 9 خانگی بسیں ضبط، آر ٹی اے عہدیدار متحرک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی تلنگانہ میچ کی آخری گیند پھینکنے کے لیے دلی جانے والے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ بل کی تیاری کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے تجاویز اور مشوروں کے حصول کے لیے گروپ آف منسٹرز نے انہیں جمعرات کو دلی طلب کیا ہے۔ اس میچ میں کامیاب کون ہوگا، اس کا نتیجہ تو گیند پڑنے کے بعد ہی سامنے آئے گا، لیکن فی الحال قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کا بھی الزام ہے اور سیاسی مبصرین کا بھی ماننا ہے کہ کرن کمار ریڈی نے اب تک متحدہ آندھرا کی آڑ میں اعلیٰ کمان کو تلنگانہ پر فیصلہ لینے کی راہ ہموار کی ہے، لہٰذا وہ آخری گیند بھی میچ فکسنگ کے مطابق ہی پھینکیں گے۔ کانگریس قائدین کے ایک گروپ کا خیال ہے کہ یہ طلبی محض ضابطے کی کارروائی ہے، ورنہ چیف منسٹر کی مخالفت کے باوجود تلنگانہ بل ریاستی اسمبلی کو روانہ ہونے والا ہے۔ ایسے میں اگر کرن کمار ریڈی مستعفی بھی ہو جائیں تو مرکز کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ تلنگانہ بل جاریہ ماہ کے اواخر تک آ جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اس بل کے لیے پارٹی کی جانب سے کوئی وپ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اسمبلی میں تمام قائدین کو اپنے اپنے علاقوں کے حق میں بولنے کی پوری اجازت رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی کوئی دوہری پالیسی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی ڈبلیو سی کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے دونوں علاقوں کے عوام کے جذبات اور نظریات کو کانگریس نے پیش کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سے ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سشیل کمار شنڈے سے کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی، ان کے دفتر میں بات ہوئی اور اس کا موضوع طوفان کے متاثرین کی امداد تھا۔ علیحدہ پی سی سی کے قیام سے متعلق سوال پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ రాష్ట్ర విభజన రాష్ట్ర సమైక్యం అనే అంశం పైన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెందిన వారందరూ కూడా రాష్ట్ర విభజన కావాలని, అలాగే అదే సందర్భంలో ఆంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలందరూ కూడా ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉండాలని మొదటి నుంచి కూడా చెప్పుకొస్తున్నారు। అదే వరవడిలో ఈ రోజు కూడా మొన్న అఖిలపక్షానికి కూడా అదే వరవడిలో వారి తాలూకు అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం। تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندرا بابو نائیڈو نے کانگریس قائدین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ قدم قدم پر تیلگو عوام کی توہین کر رہے ہیں۔ اپنی قیام گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ریاست کی تقسیم کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارتی گروپ سے کانگریس نے 2 نمائندوں کو روانہ کیا اور دونوں نے متضاد موقف ظاہر کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کانگریس میں تقسیم کے مسئلے پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ صدر تلگو دیشم نے کہا کہ کانگریس کا ایک لیڈر دعویٰ کرتا ہے کہ 1 جنوری 2014 تک ریاست کی تقسیم کا عمل مکمل ہو جائے گا، تو دوسرا لیڈر متحدہ ریاست کی برقراری کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی بات کرتا ہے۔ صدر تلگو دیشم نے سوال کیا ہے کہ جب ایک پارٹی کو وزارتی گروپ کی جانب سے صرف 20 منٹ دیے گئے تو ایسے میں ریاست کو تقسیم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ کانگریس کی اسکرپٹ پر ٹی آر ایس ڈرامہ بازی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں علاقوں کی جے اے سی اور عوامی تنظیموں کے ساتھ بات چیت کی جانی چاہیے۔ چندرا بابو نائیڈو نے مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے کے ساتھ ہوئی
PCC صدر کی خفیہ ملاقات کی تفصیلات کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ TRS اور YSR کانگریس پارٹی کا معاہدہ ہو چکا ہے اور سونیا گاندھی کی ہدایت پر ہی YSR کانگریس کے قائدین دلی گئے ہیں۔ ఈ రోజు 10:30కు తెలుగుదేశం పార్టీకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఒక GON ఒక రాజకీయ పార్టీని పిలిచి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు. దేనికోసం నేను అడుగుతున్నా అంటే మీరు ఈ యొక్క విభజన కార్యక్రమాన్ని ఒక అపహాస్యం చేశారు. చాలా దారుణంగా ప్రవర్తించారు. మీరు చాలా నీచంగా ప్రవర్తించే పరిస్థితి వచ్చింది. అడుగడుగున తెలుగు జాతిని కించపరిచే విధంగా, తెలుగు జాతి యొక్క భవిష్యత్తు ఆడుకునే విధంగా వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీస్తూ ఈ రోజు వాళ్ళలో విధ్వంసాన్ని క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి। तेलुगुदेशम के एक और लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना बिल का मसवदा पोशीदा रखकर अपोजिशन के साथ मरकज की बातचीत मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत 5 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है। सोमिरेड्डी ने सवाल किया कि वजारती ग्रुप ने जहां तमाम जमातों को बातचीत के लिए 20 मिनट का वक्त दिया, वहीं KCR को 1 घंटा क्यों दिया गया। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ 15-20 मिनट में सीमा आंध्रा के मुस्तकबिल का फैसला किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी और दीगर 2 अरकान पार्लियामेंट को उनके इस्तीफे कबूल न किए जाने के मसले पर स्पीकर लोकसभा से नुमाइंदगी करने की हिदायत दी। जस्टिस VK जैन ने 3 अरकान पार्लियामेंट को स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए उनका मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि अरकान पार्लियामेंट ने रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ इस्तीफ़े दिए थे। अरकान पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया था कि स्पीकर ने बगैर कोई वजह बताए उनके इस्तीफ़े मुस्तरद कर दिए हैं। कांग्रेस रुकने कौंसल आमोस ने कहा है कि वजारती ग्रुप जब सीमा आंध्रा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मुतफक्किर है तो हमें तेलंगाना अवाम के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत को लेकर सीमा आंध्रा कायदीन गैर ज़रूरी वावेला मचा रहे हैं। उनका कहना था कि मद्रास जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था उस वक्त जिस तरह दारुल हुकूमत बनाया गया था उसी तरह अब भी अलग दारुल हुकूमत बनाया जा सकता है। రాబోతున్న తరుణంలో చాలా మటుకు క్యాపిటల్ సిటీ ఎక్కడ ఉండాలి, ఎన్ని లక్షల కోట్లు కావాలి, ఎక్కడ పెడితే బాగుంటది అనేది ఒక దక్కు చర్చ చేస్తూ అసలు హైదరాబాద్ లో ఎన్ని రోజులు ఉండాలి, 10 ఏళ్ళు ఉండాలనా, 10 ఏళ్ల తర్వాత 20 ఏళ్ళు ఉండాలనా, ఇటువంటి ఆలోచనలు చాలా మటుకు మాట్లాడుతున్న పరిస్థితులలో CWC के फैसले की मुखालफत करने वालों के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई की जाए। कांग्रेस मॉनिटरिंग ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र G निरंजन ने पार्टी सदर को एक मकतूब रवाना करते हुए ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और सदर PCC एक तरफ CWC के फैसले को कबूल करने की बात कहते हैं तो दूसरी तरफ वो खुद CWC के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारती ग्रुप के इजलास में 2 नुमाइंदों को रवाना करते हुए चंद्रबाबू नायडू को एक और मौका फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि CM हो या कोई और, पार्टी के फैसले की मुखालफत करने पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। 18वें बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 14 नवंबर को शाम 5:30 बजे ललित कलाथुरानम में इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आला के दिल्ली दौरे की वजह से वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मरकज़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी, रियासती वज़ीर DK अरुणा के अलावा बॉलीवुड के फिल्म अदाकार रणबीर कपूर और नगमा निगार गुलजार भी शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से ललित कलाथुरानम की सजावट के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मज़कूरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान जुमला 44 ममालिक की 200 फिल्मों की नुमाइश शहर के 10 थिएटर्स में की जाएगी और इस फेस्टिवल में 1.5 लाख बच्चे शिरकत करेंगे। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर शरीक होंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी दिल्ली तलब किए जाने की वजह से 14 नवंबर को ललित कलाथुरानम में चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में मुनक़्क़िद हो रहे रच्चा बंडा प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा वज़ीर आला ज़िले विशाखापट्टनम के चोड़ावरम प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज़ कुरैशी ने नामपल्ली में वाक़े दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन में हाज़िरी दी। उन्होंने चादर गुल पेश की और फ़ातिहा गुज़रानी।
हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकारीब का सेक्रेटेरिएट में इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में IAS ओहदेदारों की बीवियों और स्कूली तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर केक भी काटा गया और बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने संगारेड्डी के करीब वाक़े वेतलूर देहात की आवाम को तयक़ुन दिया है कि वो बहुत जल्द उनके देहात का दौरा करेंगे। सदाशिवपेट मंडल के वेतलूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद ने कैंप ऑफिस पहुँचकर वज़ीर आला से मुलाकात की। किरण कुमार रेड्डी ने अवाम को बताया कि वो जल्द ही उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए उनकी यकसुई करेंगे। इस मौके पर संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी और मकामी सरपंच लक्ष्मा रेड्डी भी मौजूद थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु देशम सरबराह से मुतालबा किया है कि वो इस बात की वजाहत करें कि वो मुत्तहिदा रियासत के हामी हैं या नहीं। पार्टी के तर्जुमान प्रभाकर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को हिम्मत का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। वो शुरू से ही इस मसले पर गैर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। प्रभाकर ने कहा कि तेलुगु देशम सरबराह को इस बात का हक़ या इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जगन मोहन रेड्डी पर तनकीदें करें। సమైక్యవాదాన్ని చెప్పదలుచుకుంటే ధైర్యంగా సూటిగా చెప్పండి, కానీ మీరు విభజనవాది, మీరు సమైక్యవాది కాదు, సమైక్యం మీద మీకు నమ్మకం లేదు, అందుకే 4-5 లక్షల కోట్లు అడిగారు। మీకు సమైక్యవాదానికి కట్టుబడిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించే హక్కు గాని తాహతు గాని అధికారం గాని మీకు లేదు। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बलदी हल्के घासी बाजार का दौरा किया। बलदी बरखी और आबरसानी महकमों के ओहदेदारों और मकामी मजलिसी ज़िम्मेदार मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र के हमरा उन्होंने घासी बाज़ार, चेलापुरा, बबरी अलावा, महबूब की मेहंदी और दीगर मोहल्लाजात का तफसीली पैदल दौरा किया और मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर बाज़ मकामात पर पानी की सरबराही में खलल, ड्रेनेज उबलने और स्ट्रीट लाइट्स बंद रहने की आवाम ने शिकायत की, जिसका रुकन असम्बली ने नोट लिया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। मीटर्स के डब्बे लगे हुए हैं, वो गैर महफूज है, बिल्कुल ख़तरनाक हालत में थे। उसको फौरी दुरुस्ती के लिए हिदायत दी गई। खुसूसन महबूब की मेहंदी में एक डब्बा ऐसा खुला पड़ा हुआ है जहाँ पर किसी को भी शॉक लग के कोई हादसा हो सकता है। उसके लिए तो मैं सख्त अंदाज में बताया कि शाम तक वो डब्बा चेंज होना। और कुछ जो एरिया में पानी की शिकायत थी वहाँ पर पानी की सरबराही के दिन पानी चेक करके दिया जाएगा। और बंडी के अड्डे के अतराफ के इलाके में पानी का वक्त था, पानी माशाल्लाह से अच्छे प्रेशर से आ रहा है, लोगों को कोई शिकायत नहीं है। बहरहाल ये मेंटेनेंस के मसाइल थे, 1-2-3 मसले थे जिसको हल करने के लिए नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर तफसीली तौर पर 2 घंटे से दौरा किया गया। इंशाअल्लाह ये कामों की जल्द तकमील होगी और इसका आगाज़ भी होगा, तकमील भी होगी। फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद दोबारा इन कामों का जायजा लेने के लिए दौरा किया जाएगा। शुक्रिया। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से मुफाहमत करते हुए जमानत हासिल की है। रुकन असम्बली वर्धा राजू ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जगन को जमानत कांग्रेस की जानिब से मिली है। रियासत की तकसीम से जगन को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ तेलंगाना में पार्टी के कमज़ोर हो जाने की वजह से मुत्तहिदा आंध्रा का राग अलाप रहे हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इसी मकसद के लिए वो मुत्तहिदा आंध्रा तहरीक चलाने का ड्रामा कर रहे हैं। रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने सिंगाड़ी कुंटा और जहरा नगर में 270 मकानात के मालिकों को लैंड ग्रैबर्स कोर्ट की जानिब से नोटिसें जारी करने का मसला कलेक्टर हैदराबाद से रुजू किया। मुतासर अफराद को मज़कूरा कोर्ट ने करीब 1 साल पहले नोटिसें जारी की थी कि वो अपने मकानात का तख्लिया कर दें। मुतासर अफराद ने इस सिलसिले में रियासती वज़ीर नागेंद्र की रिहाइश गाह पहुँच कर उनसे इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया, जिस पर नागेंद्र मुतासर अफराद के साथ कलेक्टर के मकान पहुँचे और उन्हें तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कलेक्टर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो जुमेरात के दिन मज़कूरा इलाक़ों का दौरा करेंगे और हक़ाइक़ मालूम करेंगे। तो इसीलिए मैं कलेक्टर साहब खुद ही आकर जो है उनको बताया और कलेक्टर साहब के इल्म में लेके आए ये जो इनकी बस्ती के हालात को, और कलेक्टर साहब भी इस बात को जो है उन्होंने भी समझ चुके हैं। गुलिस्ता
40-50 साल से रहने वालों को जो है आज नोटिस आना एक गलत बात है, बल्कि उन्होंने भी इस बात को जो है तवक्कुन उन्होंने बताया। और खासकर जो है उन्होंने कलेक्टर साहब भी कल दौरा करने वाले हैं। उसके बाद में और मैं बस्ती के अवाम को मैं ये वादा दिलाना चाहूँगा, एक जिम्मेदार एमएलए होने के नाते है मेरा फ़र्ज़ बनता यहाँ का एमएलए होने के नाते, और आपके बस्ती में कोई भी धक्का पहुँचे तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी। और कोई भी टेंशन, कोई भी जो आप परेशान होने की कोई ये नहीं है। आपका एक नुमाइंदा, आपका एक बेटा, आपका एक दोस्त, आपका एक परिवार का हिस्सा आपके साथ हमेशा रहे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने वादी हबीब शाहीन नगर का दौरा किया। मकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों हसन बिन गालिब और अहमद सादी के हमरा उन्होंने आंगनवाड़ी स्कूल का भी मुआयना किया और मुस्तहिक़ अवाम में मकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों की जानिब से फ़राहम किए जाने वाले अनाज की तक़सीम की। और बड़े लोगों में अनाज तकसीम किया गया। हर महीना इस तरीके से आंगनवाड़ी स्कूल के लोगों की मदद की जाती है हुकूमत की तरफ से, और ये बच्चों को इब्तदाई तालीम का भी यहाँ पे इंतज़ाम रहता। और हमारे हसन बिन गालिब साहब, अहमद सादी साहब, ये लोगों की सरपरस्ती में ये बाबा यहाँ पर काम करते हैं और काफ़ी अच्छे अंदाज से चला। इससे कबल भी आके मैं स्कूल का मुआयना किया था। मस्जिद इसमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, वसत देना है इसमें कुछ, तो हम इस सिलसिले में ऑफिसरों से बात करके यहाँ पे कुछ सहूलतें मुहैया करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे बाबा साहब का इक़दाम नहायत ही अच्छा है, इसको हम पसंद करते हैं, हम ताउन भी करते हैं इस सिलसिले में। गरीब लोगों के लिए तालीम हो कि रोज़गार हो या खाना हो, गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं उनसे उनको इस्तेफ़ादा करना चाहिए। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो स्कीमात से नावाकिफ़ है, जिसकी वजह से वो लोग किसी किस्म के इस्तेफ़ादा करने से महरूम है। लेकिन यहाँ पर तो भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। मज़ीद इसके लिए जो भी होगा, नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हम मज़ीद इसके लिए भी काम करेंगे हुकूमत के पास। शुक्रिया। काला पत्थर के बाज़ अफराद ने कैंसर का इलाज डॉक्टर से करवाने के बजाय आमिल से करवाया और फिर मरीज़ा की मौत पर आमिल के मकान पर हंगामा आराई कर दी। काला पत्थर के रहने वाले मुनीर ने बताया कि उनकी 38 साला अहलिया गुज़िश्ता 3 सालों से कैंसर में मुब्तला थीं। 3 माह पहले उन्हें किसी ने काला पत्थर के रहने वाले सुल्तान नामी आमिल का पता बताया कि उसकी दुआओं से कैंसर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने सुल्तान से रब्ता किया, जिसने 50,000 रुपये के एवज़ इलाज करने का तयख़ुन दिया। उन्होंने उसे रकम भी दे दी। सुल्तान ने पानी दिया और कहा कि इस दौरान किसी किस्म की कोई दूसरी दवा न ली जाए। मुनीर ने ऐसा ही किया और अपनी बीमार बीवी को सिवाय सुल्तान के दिए हुए पानी के कुछ नहीं दिया। चारशंबे के दिन अचानक मरीज़ा फौत हो गई, जिस पर सुल्तान के मकान पर हंगामा आराई की गई। काला पत्थर पुलिस भी मकाम वाक़या पर पहुंची, जो तहक़ीक़ात कर रही है। सुल्तान फ़रार बताया गया है। मोहम्मद मुनीर है, मेरी मिसिस का नाम अंजू मुनीर है। ये सुल्तान नाम का जो है काले पत्थर मक्का हॉस्पिटल का मुर्शद जो है अल्लाह का वास्ता देके सब अच्छा कर दूंगा बोल के जो है पैसे रकम मंगा और 3 महीने से दवाएं रुका दिया, सब किसी से मिलने नहीं दे रहा था। अब 3 महीने के बाद जो है तबीयत ख़राब भी हो रही है, तो हॉस्पिटल नहीं ले आना, अच्छे हो जाते। तुम पैसे नहीं देने से हो रहा होगा बोले, तो मैं पैसे 50,000 रुपये कैश दिया उसको 15 दिन पहले। और उसके बाद जो है 2 दिन पहले भी बहुत तबीयत ख़राब हो रही, तो कुछ भी नहीं होता, बस अच्छा हो गया, ऑपरेशन हो गया, सब ठीक हो गया बोल के बताया। अब उसको कंप्लेन करे, FIR करे। कल हमारे मिसेस का डेट हो गया, कल 12 तारीख को, जो अब फरार है। उन्हें कितने महीने इलाज करे? 3 महीने। आपके मिसेस की क्या प्रॉब्लम? कैंसर का परेशानी थी। 3 साल से चल रहा था। पोजीशन अच्छी थी, अच्छे थे, रमजान तक हिलती थे। बहुत जने लाइन लगी, बेहिसाब लिस्ट है। हमारे खानदान के लोगों के 2 जने तो एक्सपायर हो गए। FIR ले लिए, अरेस्ट करने के लिए भेजे, फरार है उन्होंने। सुल्तान नाम। पूरा नाम बोलिए। वही उतना ही मालूम है उन्हें। क्या नाम बोले? सुल्तान। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड इंस्पेक्टर्स ने नामपल्ली में दूध और दही सरबराह करने वाली 4 दुकानात पर धावे किए और 2 दुकानात को मोहरबंद कर दिया, जबकि 2 दुकानात के मालिकीन को नोटिसें जारी की गई हैं। बल्दिया के फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि लाइसेंस के बगैर दुकानात चलाने वाले बाबा दूध घर और यूसुफैन दूध घर को बंद कर दिया गया है। इन दुकानात में सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। बलदी कवायद के तहत ये कार्रवाई की गई। इस मुहिम को वुसअत देते हुए मज़ीद दुकानात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ضیاءگڑھے کے علاقے میں ٹیلی فون ٹاور نصب کرنے کی کوشش کے خلاف مقامی افراد کلثوم پورہ پولیس سے رجوع ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق 2 منزلہ مکان پر سیل فون ٹاور لگایا جا رہا تھا کہ مقامی افراد نے احتجاج کرتے ہوئے گڑبڑ کر دی۔ اس سلسلے میں کلثوم پورہ پولیس میں ایک تحریری شکایت درج کروائی گئی، تاہم پولیس نے احتجاجیوں کو یہ کہتے ہوئے لوٹا دیا کہ سیل فون ٹاور سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آر ٹی اے کے عہدیداروں نے راجندر نگر کے علاقے میں 9 خانگی بسوں کو ضبط کر لیا۔ موٹر وہیکل انسپیکٹر نے میڈیا کو بتایا کہ ضبط شدہ بسوں میں ایسی بسیں بھی شامل ہیں جن کے ساتھ فٹنس سرٹیفکیٹس اور پرمٹس نہیں تھے، جبکہ بعض بسوں پر مقررہ حد سے زیادہ ساز و سامان لادا گیا تھا۔ آر ٹی اے کے عہدیداروں نے بعد ازاں ضبط شدہ بسوں کو راجندر نگر بس ڈپو منتقل کر دیا۔ سبحان پورہ واقع نامپلی کی رہنے والی ایک لڑکی نغمہ باکسنگ کے نیشنل چیمپئن شپ مقابلوں کے لیے منتخب ہوئی ہے۔ وہ 17 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے زمرے کے لیے چنی گئی ہے۔ جمعرات کے دن وہ آسام روانہ ہوگی، جہاں باکسنگ کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ لنگر ہاؤس پولیس حدود میں واقع ایک فنکشن ہال سے قریب 4.5 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شادی خانے کا ملازم غوث پاشا گزشتہ 2 مہینوں سے شادی خانے میں کام کر رہا تھا۔ وہ محنت اور خوش اخلاقی سے کام کرتے ہوئے شادی خانے کے مالک کے دل پر چڑھ گیا۔ گزشتہ 4 دنوں سے کام کے بہانے وہ رات کو اپنے گھر بھی نہیں جا رہا تھا۔ منگل کی شب اس نے کاؤنٹر سے رقم کا سرقہ کرنے کے لیے پہلے تو CCTV کیمروں کے تاروں کو نکال دیا اور پھر رقم لے کر فرار ہو گیا۔ لنگر ہاؤس پولیس نے کلوز ٹیم کے ساتھ شادی خانہ پہنچ کر جائزہ لیا۔ CCTV فوٹیج کا مشاہدہ کرنے پر پولیس کو پتہ چلا کہ غوث پاشا ایک عادی سارق ہے اور وہ 2011 میں جیل بھی جا چکا ہے۔ اس نے 12 سال کی عمر سے سرقے کی وارداتیں انجام دینی شروع کی تھیں۔ بارہ گلی حسینی علم کے ایک مکان میں چوری کی واردات پیش آئی۔ مکینوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر قفل شکنی کے ذریعے تقریباً 20 تولے سونے کے زیورات چرا لیے گئے۔ مالک مکان نے بتایا کہ وہ لوگ منگل کی شب 8 بجے عزاداری کی مجلس میں گئے ہوئے تھے اور رات 11 بجے ان کی واپسی ہوئی تو انہیں چوری کا پتہ چلا۔ حسینی علم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف منسٹر کی دلی طلبی، تلنگانہ میچ کی آخری گیند پھینکنے کے لیے کرن کمار ریڈی کی جمعرات کو روانگی۔ تلنگانہ بل اس مہینے کے ختم تک آ جائے گا، صدر PCC کو یقین۔ قدم قدم پر تیلگو عوام کی توہین کی جا رہی ہے، کانگریس قائدین کے خلاف چندرا بابو نائیڈو کا الزام۔ 18ویں انٹرنیشنل چلڈرنز فلم فیسٹیول کا 14 نومبر کو آغاز، للت کلاتھورانم میں افتتاحی تقریب۔ اور فٹنس سرٹیفکیٹس اور پرمٹس کی عدم موجودگی پر راجندر نگر میں 9 خانگی بسیں ضبط، RTA عہدیدار متحرک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔